Hello everyone. I, Fazia Kidwai, welcome you all to Balaji online classes. Today I am going to illustrate chapter number 3 maps of class 6th geography. So, what do you understand by map? According to you all, what is a map? Map क्या होता है? Basically, map represents the three-dimensional features of our earth into two dimensions on a flat-like surface, that is paper. Map also represents the whole of the earth or a part of it. जो मैप होता है बेसिकली वो जो हमारा प्लैनेट है, जो अर्थ है, जो 3 डायमेंशन में है, उसको 2 डायमेंशंस में, पेपर क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, तो उस पर बेसिकली हमारे अर्थ का एक नक्शा बनता है और उसे हम मैप कहते हैं. मैप वर्ल्ड का भी होता है, पूरी दुनिया का मैप भी होता है और एक पर्टिकुलर पार्ट का भी होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैप है, ठीक है. इंडिया के मैप में क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब शो होते हैं मैप में. दैट व्हाट मैप इज. सेकेंड इज मैप मेकिंग. अब मैप बनते कैसे हैं, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ व्हाट हैपन, एक पर्टिकुलर एरिया का जिसका मैप बनाना होता है, इन दैट एरिया सर्वेस आर कंडक्टेड and through this a general view of that area is taken and also the measurements. Then the drawing of map begins on the paper. पेपर में हम मैप, उस पर्टिकुलर एरिया का मैप बनाना स्टार्ट कर देते हैं. And one special method is used in this process that is called as projection. And after this that map is printed into number of copies and this is called as reproduction. Then there are 3 types of maps. First is the physical map, which basically shows the plain, mountain, rivers and जो major landforms होते हैं, plateaus, उनको show करता है. Then comes the political map. Political map shows the countries, towns and cities. Third one is the thematic map. Thematic map shows the cultural and physical themes. Cultural themes involves the distribution of population, bridges, industries, railways, etc. While the physical theme involves the rainfall, the temperature and all the climatic regions. Then the component of map. Map के क्या components होते हैं? सबसे पहला तो होता है title. Title is what? It introduces the theme of a map. कि ये मैप किस थीम पर है, क्या टॉपिक है, ये डिस्प्ले करता है टाइटल. Then comes the key. This is a list of symbols what they stands for. मैप में बहुत टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं, पर्टिकुलर सिंबल्स. तो मैप के एक साइड में उन सिंबल्स के सामने ये मेंशन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर सिंबल्स किसके लिए यूज किए गए. इस तरह से क्या होता है, क्लैरिटी आती है. Then the third one is scale. It helps to measure distances and calculate areas. Direction. On most of the maps, an arrow is drawn to show the direction. And the tip of the arrow mostly points towards the north. क्या होता है, मैप में डायरेक्शंस देखने होते हैं. तो डायरेक्शंस के लिए क्या होता है कि मोस्टली मैप में एरो बनी होती है और उस एरो में जो टिप होती है वो नॉर्थ के साइड होती है. इससे क्या होता है, जब नॉर्थ के साइड है तो जो अदर 3 डायरेक्शंस हैं वो हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे. देन दी फिफ्थ वन इज ग्रिड सिस्टम. इट इज क्विक एंड इजी वे ऑफ हेल्पिंग अस टू फाइंड दी प्लेसेस. देन जो इसमें से 3 ऐसे हैं कंपोनेंट्स हैं जिनका हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज स्केल. Maps are drawings basically which reduce the entire word on a piece of paper. But this reduction is done very carefully so that the distance between places is real. Map जो क्या होता है, बेसिकली पूरी दुनिया को एक छोटे से पेपर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें ये रिडक्शन हम करते हैं कि हमें इतना केयरफुली करना चाहिए कि जो भी डिस्टेंसेस हैं एक दूसरी जगह के बीच में वो रियल दिखें. And this can be achieved only when a small distance on a paper represent a large distance on the ground. जो actual distance होता है वो डिस्प्ले हो पाए उस पर्टिकुलर piece of paper पे. And for this a scale is
chosen. Scale is basically the ratio between the actual distance on the ground to the scale distance on the map. जो actual distance होता है और जो distance लिया जाता है मैप पे, उन दोनों distance के बीच का ratio जो होता है, that is what scale is. Now for example, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन दो प्लेसेस है x एंड y, इसके बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इनका एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है. लेट्स से आपने मैप में इसको 2 सेंटीमीटर से मार्क किया, तो आपने कितनी की स्केल ली? आपने स्केल ली है कि जो 1 मीटर है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर के इक्वल है ना? तभी तो आएगा कि 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 जो है 10 किलोमीटर की इक्वल है. मीन्स जो आपकी स्केल है दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. देन क्या होता है, जो लार्ज एरियाज होते हैं लाइक कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स दैट आर शोन ऑन पेपर एंड देयर वी यूज अ स्मॉल स्केल. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्मॉल स्केल मैप. व्हाइल इफ वी हैव टू present a small area, then a large scale is used and these are called as large scale map. Large scale map gives more information as compared to small scale. Then comes the directions. अभी हमने पढ़ा कि जो डायरेक्शंस होता है, बेसिकली डायरेक्शंस जो मैप में होते हैं वो एरो के थ्रू पॉइंटेड होते हैं और एरो की जो टिप होती है वो मोस्टली किधर होती है? नॉर्थ के साइड होती है. क्यों? क्योंकि बिकॉज उससे लेकर हम और 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं. जो बेसिकली जो 4 मेजर डिस्टेंस होते हैं दैट इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स. और जो अदर इंटरमीडिएट डिस्टेंस होते हैं दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. फिर इनको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डिस्टेंस कहते हैं और इनकी हेल्प से हम इजीली किसी भी प्लेस की लोकेशन जान सकते हैं. देन कम्स दी साइंस एंड सिंबल्स. अभी हमने पढ़ा था कि मैप्स में डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं उस पर्टिकुलर, जैसे कोई एक पर्टिकुलर सिटी है उसमें रिवर्स भी हैं, उसमें सपोज करो कि माउंटेन भी है, लेक भी है, हाउसेस भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं. अब उन सब को आपको डिस्प्ले करना है तो आप कैसे करोगे? आप डिफरेंट सिंबल्स यूज करोगे. बट ये जो सिंबल्स होते हैं, सपोज जैसे कोई टूरिस्ट है, किसी टूरिस्ट को आपकी प्लेस पे आना है. टूरिस्ट क्या होते हैं? वो एंटायर वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. जैसे आप ही हो, आप समर वेकेशन में कहीं एक बार मनाली जा रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप राजस्थान जा रहे हो, तो आपको हर प्लेस के मैप्स चाहिए होंगे. इन केस अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट लोकेशन, तो क्या होता है मैप्स में, क्या होता है कि मैप्स डिफरेंट लोग यूज करते हैं. एंड इन केस अगर आपको वर्ल्ड टूर पे कोई गया है तो उसको भी एक मैप चाहिए होगा. एंड तो इसलिए जो ये सिंबल्स होते हैं इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है. मीन्स जो सिंबल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब समझ सके, तभी मैप उनके लिए यूजफुल होगा. अदरवाइज मैप का कोई यूज ही नहीं होगा इफ दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिंबल्स, राइट? तो दीज सिंबल्स आर कॉल्ड एज conventional symbols and signs. In physical map, different colors show different landforms. जैसे कि ग्रीन जो है वो प्लेन्स के लिए बेसिकली होता है, ब्लू ओशियन और सीज को रिप्रेजेंट करता है, येलो रिप्रेजेंट दी डेजर्ट. वाई? तो ये जो फीचर्स हैं सारे, ये इन फीचर्स और इन कलर्स, इन पर्टिकुलर सिंबल्स की हेल्प से किसी भी प्लेस की पर्टिकुलर लोकेशन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है. Then comes the sketch. Sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not according to the scale. Sketch क्या होता है? एक रफ ड्राइंग जो हम करते हैं जिसमें हम कोई पर्टिकुलर स्केल नहीं यूज करते हैं, कोई ये नहीं कि हम कन्वेंशनल साइंस से सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं करते. एक हमारी रफ ड्राइंग है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर इफ योर फ्रेंड कॉल्स यू एंड ही सेज दैट ही हैज टू विजिट योर होम but he did not know the address of your home or the way through which he can reach your home. So what you will do? You will give him a rough sketch. या तो आप डायरेक्शंस बताओगे या उसे आप पेपर पर लिखकर एक रफली एक आइडिया दोगे कि ऐसे करके यहाँ पे टर्न होना है, फिर यहाँ टर्न होना है, एंड इन दिस वे यू विल रीच माई प्लेस. तो ये क्या है? ये एक रफ डिस्क्रिप्शन है एंड दिस इज कॉल्ड एज स्केच. इसमें जो डायरेक्शंस और डिस्टेंस यूज होते हैं
वो क्या होते हैं, बिना किसी स्केल के होते हैं। मीन्स उसमें एक्चुअल डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑन पेपर के बीच में कोई मसला नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी आप कर सकते हो। लाइक अगर आप 5 किलोमीटर रहते हो तो जरूरी नहीं कि आपको 5 किलोमीटर इसमें शो करना पड़े, आप इतनी सी एरिया से बिना किसी स्केल के थ्रू भी वो शो कर सकते हो। देन कम्स द प्लान। नाउ क्या होता है कि a city or town may have many structures, many buildings, and that detailing cannot be showed through a map or sketch. For that we need a plan. उसके लिए हमें एक प्लान चाहिए होता है। प्लान बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज आपका घर बना होगा, जब आपका घर बना होगा तो आपके घर का जो मैप है, जो कह सकते हो जो प्लान है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्किटेक्ट ने बेसिकली डिजाइन किया होगा ना, कि यहाँ पे आपके 2 रूम्स होंगे, यहाँ पे आपका किचन होगा, यहाँ आपका बाथरूम होगा, पर्टिकुलर चीजें। तो ये जो हमारा चीज होती है इसे हम कहते हैं प्लान। दिस इज द प्लानिंग, ठीक है, दैट इज डन बाय द आर्किटेक्ट्स। जैसे बिल्डिंग्स की होती हैं, हाउसेस की होती हैं, उसमें पर्टिकुलरली बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ आपके उसने पर्टिकुलर एरिया में होगी। They show the actual sizes, locations of staircase, doors and windows, etc. So yes class, your chapter ends here. Please read this chapter properly and thoroughly, and also learn all the new terms with their meanings. You can get your notes through School Mitra app. Please download those PDFs and complete your work. Thank you.